बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इसमें आज हम जो स्टडी करेंगे नंबर 1 पे 5.1 कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 5.2 इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, 5.3 पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, 5.4 प्रोजेक्ट्स एड्स एंड इट्स काइंड्स, लाइक 5.4.1 फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, ओपेक प्रोजेक्टर्स। 5.5 में non-projective ads and its kinds. Non-projective two-dimensional ads, pictures, photographs, flashcards, folding cards. Cartoon, maps, posters, charts, flip charts, graphs, chalkboard, marker boards, felt boards, magnetic boards, non-projected three-dimensional visual ads, types of three-dimensional ads, models, mockups, difference between model and mockup, diorama, exhibits, display, study kit, specimen, real object, globe। 5.6 में हम स्टडी करेंगे ऑडियो वीडियो एड्स, जिसमें आएगा रेडियो, टेलीविजन, ईएलवी, वीडियो, इंटरैक्टिव वीडियो, वीडियो टेक्स्ट, डायल एसएस। 5.7 में एक्टिविटी एड्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल CAI से। ईमेल, CD-ROM, ड्रामेटाइजेशन, फील्ड ट्रिप्स। 5.8 में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मीडिया। 5.9 रोल ऑफ मीडिया एंड एड्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 5.10 डेवलपिंग लो कॉस्ट मटेरियल। 5.11 में गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द यूज ऑफ AV एड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन। Educational technology is a systematic and organized process of applying modern technology to improve the quality of education, efficiency, optimal, true, etc. It is a systematic way of conceptualizing the execution and evaluation of the educational process, for example, learning and teaching, and help with the application of modern educational teaching techniques. It includes instructional material, methods, and organization of work and relationship. For example, the behavior of all participants in the educational process. Concept of education technology. Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technology process and resources. IT may be defined as the application of law as well as recently discoveries of science and technology to the process of education. Educational technology is neither an end itself nor a concept that consists all of education. It mainly accomplishes some predetermined, clearly defined, and unbiased educational and instructional objectives. Instructional technology is neither technology in education nor technology of education. It should not be confused with teaching or instruction, education or learning, engineering or science, but as a sum total of all. Instructional technology. Instructional technology is the art and study of building a learning system and also building a feedback mechanism into the learning system in such a way that the system is sensitive to the dynamics of each individual's learning
experience as well as the whole of everyone's experience and is built in such a way that the system is ever improving in its effectiveness and delivery of the subject matter. So instructional technology with the help of education for better understanding and make the technology useful and valuable. Purpose of instructional technology. Instruction technology encompasses all the materials and physical means an instructor might use to implement instruction and facilitate student achievements of instructional objectives. This may include traditional materials such as chalkboards, handouts, charts, slides, overheads, real objects, and videotape or film, as well newer materials and methods such as computers, DVD, CD-ROM, and internet and interactive video conferencing. इससे पहले हम फर्दर स्टार्ट करें प्रोजेक्टिव एड्स एंड इट्स काइंड, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है और उसका पर्पस क्या है, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किस तरह से ये हेल्प करती है. जैसे भी हमने एग्जांपल में देखा कि बहुत सी चीजें जो हम यूज करते हैं अपने इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में जो हेल्प करती है, गाइड करती है स्टूडेंट को, फैसिलिटेट करती है उन्हें अपना टॉपिक जो सा भी इंस्ट्रक्शन देना जा रहे हैं, जो से लेक्चर देना है उसमें हेल्प करने के लिए. जैसे चाक बोर्ड हम यूज करते हैं, हैंड आउट यूज कर लेते हैं, चार्ट यूज करते हैं, स्लाइड्स वगैरह जैसे भी पीपीटी या पीडीएफ के स्लाइड यूज कर रहे होते हैं, ओवरहेड जो प्रोजेक्टर्स है वो भी यूज होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज कर लेते हैं एज अ मॉडल, फिर वीडियो टेप कोई रिकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं, कोई फिल्म उससे टॉपिक से रिलेटेड हम वॉच करवा सकते हैं. और जो उसके अलावा जो न्यू मटेरियल्स हैं, न्यू मेथड है, जैसे कंप्यूटर हमारी क्लास जो हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, सारे हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, डीवीडीज, सीडी रोम्स में वीडियो लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड करके भी आप डिलीवर कर सकते हैं. फिर इंटरेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे लाइव अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है जिसमें इंटरेक्शन हो सकती है. अल्हम्दुलिल्लाह सबको यहाँ पे क्लियर है. अब फर्दर स्टडी करते हैं प्रोजेक्टेड एड्स एंड इट्स काइंड्स. Projected visual ads are pictures shown upon a screen by use of a certain type of machine such as a film strip, projector, slide projector, overhead projector. हम यहाँ पे जो बात करें फिल्म स्ट्रिप की प्रोजेक्टर की बात करें, स्लाइड प्रोजेक्टर की बात करें, ओवरहेड प्रोजेक्टर की, और टीवी और वीसीआर. आजकल तो वीसीआर बहुत कम यूज होता है, पहले यूज होता करता है, टेप वगैरह जब लगाते थे. वैल्यूज ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स. Values of projected ads. Number one, provides greater enjoyment in learning, stimulates more rapid learning, increases retention, larger percentage and longer retention, makes teaching situations adaptable to wider range, compels attention, enlarge or reduce actual size of objects, brings distance past and the present into the classroom, provides an easily reproduced record of an event, influences and changes attitudes. Kinds of projected ads. Films, film strips, PowerPoint slides, transparency, overhead projectors, OHPs भी बोलते हैं इसको, opaque projector, digital projectors. ये सब काइंड्स ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स हैं. ये फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, जब पहले थिएटर या फिल्म्स वगैरह दिखाई जाती थी तो उसके लिए इस तरह का जो प्रोजेक्टर है वो यूज होता है. नॉन प्रोजेक्टेड एड्स एंड इट्स काइंड. Those ads which do not require projector, projection screen or electricity, उन्हें नॉन प्रोजेक्टेड एड्स बोलते हैं, जिसमें ना प्रोजेक्टर चाहिए, ना स्क्रीन चाहिए, ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए.
Such materials can be simply shown, hung on the wall, touched and handled by any students. इन मटेरियल्स को हम दीवार पे हैंग कर सकते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट से यूज कर सकता है. नॉन प्रोजेक्टेड टू डिमेंशनल एड्स, फोटोग्राफ्स दीवार पे हैंग हो जाती हैं. फ्लैश कार्ड्स, कार्टून, मैप्स, पोस्टर्स, चार्ट्स, स्ट्रिप टीज, फ्लिप चार्ट्स, ग्राफ्स, chalkboard, marker board, flân board, bulletin board, मैग्नेटिक बोर्ड. ये कुछ पिक्चर्स भी है फ्लैश कार्ड की, फोटोग्राफ्स की, मैप्स की, पोस्टर्स की. कुछ कार्टून शो हुए हैं. नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स. अब इनमें 2 डायमेंशनल लिखे थे, अब ये 3 डायमेंशनल आ गए. मॉडल्स, किसी भी लेक्चर, किसी भी टॉपिक का हम बच्चों को मॉडल्स बनाने को कह सकते हैं, खुद बना के लेके जा सकते हैं कि किसी सिनेरियो का मॉडल बना के उसको रिप्रेजेंट किया जाए और फिर उसको एक्सप्लेन किया जाए. मॉकअप्स, डायग्राम्स, एग्जीबिशंस, रिसोर्स पैक्स एंड हैंडबुक्स, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन, ग्लोब, वर्कशीट. अभी हम डिस्कस कर रहे थे नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स. इसमें मॉडल्स, मॉकअप, डायग्राम, एग्जीबिशंस, रिसोर्स पैक एंड हैंडबुक्स, रियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेन, ग्लोब एंड वर्कशीट शामिल है. ऑडियो वीडियो एड्स. Audio visual ads are any device which can be used to make the learning experience more concrete, more realistic and more dynamic, which help in completing the triangular process of learning, that is motivation, classification and stimulation. जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आवाज़ भी आ रही होती है और हम वीडियो पिक्चर्स भी देख रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा कॉन्क्रीट है, ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा डायनामिक है किसी हेल्प करने में कि हम कंप्लीट करें या ट्रायंगल प्रोसेस ऑफ लर्निंग को जो मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन और स्टिमुलेशन करता है. टाइप्स ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स. रेडियो, टेलीविजन, पैसिव वीडियो, इंटरेक्टिव वीडियो. टाइप्स ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स. रेडियो है, टेलीविजन है, पैसिव वीडियो, इंटरेक्टिव वीडियो. एक्टिविटी एड्स. There are certain learning situations in which students' participation through direct experiences can be easily incorporated. These are called activity ads. जिसमें learning by doing, जो भी काम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके सीखता है या हैंड ऑन प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस करता है उसे एक्टिविटी एड्स बोलते हैं. जैसे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ईमेल, सीडी रोम, dramatization, field trips, strength and weakness of media. Advantages of using in teaching and learning process. Number 1, media as a communication tool to further streamline the process of learning, teaching. Number 2, the functions of the media in order to achieve educational goals. Third, the nitty-gritty of the process of learning. Fourth, the relationship between teaching method with educational media. 5, the value or benefits of media education in teaching. 6, selection and use of media education. 7, different types of educational media tools and techniques. 8, media education in each subject. 9, business innovation in education. इन 9 पॉइंट हमने स्टडी किए हैं. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मीडिया इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस,
जो मीडिया है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए लर्निंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। इसके जो फंक्शंस ऑर्डर करता है, जो हमने अचीव करने एजुकेशनल गोल्स उसको इजीली फंक्शन करता है काफी बेहतर वे में। रिलेशनशिप ये टीचिंग मेथड करता है विद एजुकेशनल मीडिया। बेनिफिट्स है मीडिया को यूज करने का टीचिंग में कि आप जैसे आजकल कुछ लर्निंग एजुकेशनल चैनल्स भी चल रहे हैं, कुछ एड्स हैं, फिर जैसे अभी हम हेल्पिंग टूल्स यूज कर रहे हैं, पीछे भी काफी ज्यादा हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड मीडिया बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। Disadvantages of using media in teaching and learning process. Some teachers feel that they don't want to have yet another new thing to learn. Disadvantages क्या है? कुछ लोग जो हैं या कुछ टीचर ऐसे हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, वो नहीं चेंज करना चाहते। वो न्यू टेक्नोलॉजीज को, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्टडीज है या कंप्यूटर में कन्वर्ट होना है या आईटी को यूज करना है, वो नहीं चाहते। वो ट्रेडिशनल वे को ही पसंद करते हैं। वो कहते हैं हमें उसी स्टाइल में ही पढ़ाना है, क्योंकि उसी स्टाइल में वो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। उनको क्योंकि कंप्यूटर की या आईटी की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो डिवाइसेज या गैजेट्स इतने अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते, तो वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। हम पिछले ही मेथड से वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। तो उनकी भी रेमेडी है कि उनको भी चाहिए यही कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस वीकनेस को ओवरकम करे, स्टडी करके लर्निंग करके इम्प्रूव हो। Next, teachers are not paid enough to spend all their free time learning to use new digital tools and implementing them. जो टीचर है वो नहीं पेड करते, अपना सारा वक्त जो फ्री है वो नया डिजिटल टूल सीखे या इम्प्लीमेंट करें। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं मीडिया की। Not all students want to participate in the use of online tools. और सब स्टूडेंट्स ऑनलाइन टूल्स को यूज करने, वहां तो टीचर की डिसएडवांटेजेस है। अब स्टूडेंट भी नहीं सब चाहते कि वो सारे ऑनलाइन हो, टाइम निकालें, इंटरनेट यूज करें, गैजेट यूज करें और चीजें करें। सम स्कूल्स कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे फाइनेंस का भी इशू है कि जो स्कूल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। कुछ स्कूल तो कर लेते जिनके पास अच्छे फाइनेंस है, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। मैनी educators who talk about the use of technology in a classroom often assume easy and available internet access. बहुत से स्टूडेंट्स है वो आ करते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना है, हमें असेसेबल जो है वो इजी होनी चाहिए और इंटरनेट के एक्सेस होना चाहिए। जैसे अक्सर ऑनलाइन क्लासेस में ये इश्यूज आ जाते हैं, एलएमएस में एक्सेस नहीं हो रहा, कभी वर्कशॉप पे, कभी क्लास में, या कोई भी ऑनलाइन वर्चुअली क्लास लेनी है तो उसमें बहुत से टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं। वो सब क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं मीडिया के इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। रोल ऑफ मीडिया एंड एड्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब हम मीडिया का रोल और एड्स का रोल देखने लगे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के हवाले से। नीड ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या फायदा है इसका, क्या पर्पज है। Need of teaching ads. Every individual has the tendency to forget. Proper use of teaching ads help to retain more concept permanently. हर बंदे के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो चीजों को भूल जाता है कुछ अर्से बाद। अगर हम टीचिंग एड्स को प्रॉपरली यूज करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि जो रिटेन कर सके कॉन्सेप्ट परमानेंटली। जैसे हम जो बोल रहे हैं वो ही दिखा रहे हैं और उसी को अच्छी तरीके से चार्ट, क्लिपबोर्ड्स, मॉडल्स, विजुअल एड्स, ऑडियो वीडियो एड्स, फिल्म्स, एक्टिविटीज, बहुत सी चीजें करें तो उस एक कंसेप्ट को कंपैरेटिवली हम टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी की तरफ, परमानेंट कंसेप्ट की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। हम डिफरेंट टीचिंग एड यूज करके जब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके टीच करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। Teaching ads develop the proper image when the students see, hear, taste and smell properly. ज्यादा अच्छी तरह कब होंगे कि जब वो प्रॉपर इमेज, उनके पास प्रॉपर इमेज आएगा, वो उन्हें देख सकेंगे, सुन सकेंगे, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं प्रॉपरली। तो सेंस के लिहाज से, हम सेंस और गन के लिहाज से जब उनको ये चीजों गाइड करने की कोशिश करें तो कंपैरेटिवली जो रिजल्ट है लर्निंग का वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। Teaching ads provide complete example
for concept. Teaching ad provide complete example of conceptual thinking. जितने भी टीचिंग एड्स हैं ये क्या प्रोवाइड करती है, एक एग्जांपल प्रोवाइड करती है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सोचने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग वो क्लियर हो कंप्लीटली. Teaching ads create the environment of interest for the students. ये एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है स्टूडेंट्स में लर्निंग के लिए. टीचिंग एड्स हेल्प टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करती है. टीचिंग एड्स हेल्प द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंट. हेल्प करती है टीचर को, गेट कुछ टाइम लगाता है और मेक लर्निंग परमानेंट. टीचिंग एड प्रोवाइड डिफरेंट एक्सपीरियंस टू दी स्टूडेंट्स. ये डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है स्टूडेंट्स को की लर्निंग में. इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स. अभी हम स्टडी किया है नीड टीचिंग एड्स की क्या जरूरत है, कैसे हेल्प करती है. अब इसकी इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट टू so that they can learn better. Through teaching ad, the teacher clarify. Importance of teaching ads. Teaching ads motivate the students so that they can learn better. Importance of teaching ads. Teaching ads motivate the students so that they can learn better. Through teaching ads, the teacher clarify the subject matter more easily. Discouragement of cramming. Teaching ads can facilitate the proper understanding to the students, which discourage the act of cramming. Teaching ads help to increase the vocabulary of the students more effectively, save time and money. Teaching ads make the classroom live and active, avoids dullness, direct experience. Teaching ads provide direct experience to the students. Uses of teaching ads. Instruction ads used properly help the instructor communicate effectively by adding realism and substance to ideas, descriptions, and explanations that are used in the course of instruction. To use instructional ads effectively, the timing or introduction of the ad in the lesson is an important factor. The instructor should use appropriate procedures and techniques when employing instructional ads. क्या करना चाहिए इंस्ट्रक्टर को कि वो अप्रोप्रिएट तरीके से प्रोसीजर इस्तेमाल करे, टेक्निक्स यूज करे जब वो अप्लाई करें इंस्ट्रक्शनल एड्स को. तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स. Selection and use of instructional ad should be chosen carefully and used correctly during instruction. बहुत सी टाइप्स हैं यहाँ पे एड्स की, उनकी सिलेक्शन करते हुए बहुत एहतियात करें और कब यूज करनी है इंस्ट्रक्शनल एड को, केयरफुली उसे यूज करें और केयरफुली उसे चूज करें और कि कहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन के दौरान, लेक्चर के दौरान कौन सी एड कब यूज होनी चाहिए, वो इंस्ट्रक्टर इस चीज का ध्यान रखे, मुनासिब तरीके से प्रोसीजर्स और टेक्निक्स को फॉलो करें. Developing low cost material. Low cost teaching learning materials are materials which have the following characteristics and qualities. Number one, the materials can be made by teachers, pupils or members of the community. जो मटेरियल है वो कौन बना सकता है, टीचर्स बना सकता है, शागिर्द बना सकते हैं या कोई भी कम्युनिटी का मेंबर बना सकता है. The material supplied can be put to effective use by the teachers and pupils in the classroom and do not incur extra cost. जो मटेरियल की सप्लाई करनी है हमने इफेक्टिवली इसको यूज करना है टीचर्स और पीपल में क्लासरूम के लिहाज से, और एक्स्ट्रा कोस्ट या ऐसी चीज नहीं करनी जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए. The processes in the production of the materials are simple and inexpensive. जो प्रोसेस है प्रोडक्शन करने का मटेरियल का वो बहुत सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है.
द प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग। जो आपने लो कॉस्ट मटेरियल बनाना है ऐसे होनी चाहिए कि आपका जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा ना लगे, मिनिमम थोड़े से टाइम में आप अपनी चीजों को क्रिएट करें और यूटिलाइज कर सकें। The materials are freely and easily available from the local environment। वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इजीली आपको लोकल एनवायरनमेंट से दस्तयाब हो जाए, मिल जाए, जिसको आप यूज कर सकते हैं फ्रीली। जैसे अक्सर स्कूल्स में प्रैक्टिस होती है, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में, जब जितने भी हम वेस्ट मटेरियल है उनको भी यूज करके रिसाइकल कर लेते हैं ताकि वो एज अ मॉडल्स या कुछ चीजें बना के चार्ट्स वगैरह उनको यूटिलाइज किया जा सके। तो वो भी लो कॉस्ट आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं। दीज मटेरियल्स कैन बी, ये मटेरियल्स कौन से हो सकते हैं जिनके अभी डिस्कशन करते हैं, जैसे प्लांट्स, बैम्बोज, लीव्स, एनिमल्स, शेल, स्किन, बोन्स। मिनरल्स में लाइमस्टोन है, चारकोल्स हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में फ्यूसिस है, यूज बैटरीज हैं, एक्सेट्रा। ये सारे इन मटेरियल्स के इंग्रेडिएंट्स हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द यूज ऑफ एवी एड्स। अब क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या गाइडेंस है कि आपने ऑडियो विजुअल एड्स को किस तरह से यूज करना है, वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, देयर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स। बहुत से सोर्सेज हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स की। व्हाइल देयर आर commercially available instructional ads, the instructor is also a very important source. Most of the commercially produced instructional ads are very scarce and often unaffordable. For the instructor to achieve set objectives effectively and efficiently, she and he will have to design, construct, and use desired instructional ads. This practice is called improvisation. As an instructor, one may notice a particular instructional problem which may be solved by use of some type of ads. कहते हैं बहुत से इंस्ट्रक्शनल एड्स अवेलेबल है, उसके कमर्शियल भी अवेलेबल है इंस्ट्रक्शनल एड्स के, और बहुत से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो अनअफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर है उसे चाहिए कि वो लो कॉस्ट के मुताबिक हमने इर्द गिर्द में जो इजीली अवेलेबल हैं उनको यूज करते हुए मटेरियल्स को ऐसी एड्स बनाए जो हेल्प कर सके इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम को, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करने में, ताकि बेटर वे में इम्प्रोवाइजेशन कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके और अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिलीवर कर सके, समझा सके स्टूडेंट्स को। Most well-designed and constructed instruction ads are relatively simple. ज्यादातर जो वेल डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्शन एड्स होती हैं वो सिंपल होती हैं। प्लान, लेआउट एंड proportion are important features of an effective instructional ad. प्लान करना, लेआउट एंड प्रोपोर्शंस, तीन मेजर चीजें और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल एड्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्लान, लेआउट, प्रोपोर्शन, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल एड्स की। यूज ऑफ कलर whenever possible will serve to appeal to the senses and also define certain parts and show their relationship। जैसे हम कलर्स यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा अपील करती है, हमारे सेंसेस को डिफाइन करती है, सर्टेन पार्ट्स को, एंड शो देयर रिलेशनशिप्स। इफ द डिजाइन इंस्ट्रक्शनल एड इज एन ऑब्जेक्ट, द इंस्ट्रक्टर शुड सेलेक्ट द मटेरियल टू बी यूज्ड। अगर मैं जो डिजाइन करनी इंस्ट्रक्शनल एड अगर वो ऑब्जेक्ट है तो इंस्ट्रक्शन को क्या चाहिए, शुड सेलेक्ट मटेरियल टू बी यूज्ड। मटेरियल टू बी यूज्ड शुड बी दोज which are locally available and cheap in term of cost। ऐसा मटेरियल यूज करना है ऑब्जेक्ट के लिए जो लोकली अवेलेबल हो, एनवायरमेंट से मिल जाता हो और लो कॉस्ट हो, चीप हो। On the other hand, if the instructional ad is a model, material and their cost should be estimated and costed। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज का यूनिट 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम यूनिट 6 की स्टडी स्टार्ट करते हैं।